علاقے وزیراعظم محمد شہباز شریف جو کہ ملتان پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نشتر اسپتال 2 کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی موجود ہیں، جبکہ گورنر پنجاب بھی عمائدین میں شامل ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف آج ملتان کا دورہ کر رہے ہیں، پنجاب کے دورے پر ہیں۔ 500 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال ہے جو کہ جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو مستفید کرے گا۔ اس وقت میاں محمد شہباز شریف ملتان میں موجود ہیں، وہ نشتر اسپتال 2 کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نشتر اسپتال ملتان میں موجود ہے، جبکہ یہ دوسرا ان کا دورہ ہے جو کہ 500 بستروں پر یہ مشتمل ہے۔ اس اسپتال سے جنوبی پنجاب کے دور دراز کے علاقے کے لوگ مستفید ہوں گے۔ ملتان پہنچ گئے ہیں، نشتر اسپتال 2 کا آج باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ دورہ ہے نشتر اسپتال 2 کا جو کہ ملتان میں ہے۔ 500 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال ہے۔ ان کے ہمراہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور گورنر پنجاب بھی موجود ہیں۔ وزیراعظم جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیں گے، جبکہ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں میں یوتھ لون اسکیم کے تحت چیک بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اب تک 1,10,000 نوجوانوں کو کئی ارب روپے اس سلسلے میں دیے جا چکے ہیں، جبکہ باصلاحیت اور قابل طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب بھی آج ملتان میں ہوگی۔ یہ مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر، جہاں ملتان پہنچنے پر وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ اور یہ سر وہ ہے سر کہ جو ہم آپ کو انشاءاللہ سر 30 سپٹمبر کو دیں گے سر۔ سو ایز سر سنگل اسکرو از کنسرن جو باہر سے آنا تھا سر وہ سائٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے سر، اور اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کو 30 سپٹمبر کو انشاءاللہ یہ پروجیکٹس ہم ڈیلیور کریں گے سر۔ یہ ملتان کو تحفہ دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے۔ تحفہ تو پی ایم کا ہم نے تو صرف کمپلیٹ کرایا ہے۔ سر کمپلیٹ کرنے کا تحفہ تھا، ہم تو مایوس ہو گئے تھے، فاسٹ ٹریک پہ گیا ہم مایوس ہو گئے تھے کہ یہ نہیں بنے گا۔ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن کاسٹ میں ایسکیلیشن جو آئی ہے سر، کاسٹ میں ایسکیلیشن یہ ہے سر کہ دیٹ از 9.7 بلین کے اگینسٹ، ون واز دا ڈیلے سر، اور سر اس کے بعد جو یہ سر گریڈ کی سر اس میں کاسٹ میں 600 ملین کی ایسکیلیشن ہے سر، اور پھر اس میں ڈیزائن ویریشنز کافی ہوتی رہی ہیں سر۔ پیشنٹ بیٹھے ہیں 300 پیشنٹس اور ایوریج ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز جلدی بن رہا ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ ملتان، زیر تعمیر نشتر 2 اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کو انتظامیہ کی جانب سے تعمیراتی کاموں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ملتان کا یہ دورہ نشتر اسپتال 2 جو کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف آج دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کو انتظامیہ کی جانب سے تعمیراتی کاموں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ آج اہم دورہ ہے جنوبی پنجاب کا، جس کے موقع پر وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف ملتان میں موجود ہیں اور اس وقت وہ نشتر اسپتال 2 کا معائنہ کر رہے ہیں۔ 500 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال ہے۔ ان کے ہمراہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، پنجاب کے گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی موجود ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ ملتان اہمیت کا حامل ہے۔ زیر تعمیر نشتر 2 اسپتال جس کا دورہ آج وہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کو تعمیراتی کاموں پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ 500 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال ہے جو کہ جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو مستفید کرے گا۔ مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر، جہاں وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت ملتان میں نشتر اسپتال 2 کے دورے پر موجود ہیں اور آجائیں رحیم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، گورنر پنجاب، وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی، آج الحمدللہ اور دوسرے یہاں پر موجود ہسپتال کے
जो ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ पर निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल नंबर 2 का आज यहाँ पर एक मेरा विज़िट था और मुझे यहाँ पर आकर दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। दुख इस बात का कि जब 2018 में हमने इस मंसूबे का बाकायदा ऐलान किया और सारे जो लवाजमात थे उनको मुकम्मल किया, तो झुरलू इलेक्शन के बाद चाहिए था कि जो भी इमरान नियाज़ी को कांधों पे बिठा के लाए थे वो इमरान नियाज़ी से, उनकी हुकूमत से ये अस्पताल शबाना रोज़ मेहनत करके मुकम्मल कराते और दुखी इंसानियत के लिए जिस तरह निश्तर मेडिकल कॉलेज अस्पताल नंबर 1 के ऊपर बेपनाह प्रेशर है, उसी की वजह से हमने 2018 में इसकी एक्सटेंशन का फ़ैसला किया था। और उसके बाद जो कुछ हुआ डेट इज़ हिस्ट्री। लेकिन जो 4 साल पीटीआई हुकूमत ने बर्बाद कर दिए, कोई फंड्स, खातर खा फंड्स मुहैया ना किए, 300 मिलियन 400 मिलियन रुपीज़ मुख्तस करना, इट वाज लाइक अ क्रूअल जोक। यानी दुखी इंसानियत इस बात के इंतज़ार में थी कि अस्पताल जितनी जल्दी मुकम्मल होकर उनके बाल बच्चों के लिए, हमारी माँओं बहनों के लिए, बुज़ुर्गों बच्चों के इलाज के लिए मौजूद होता, उसको बिल्कुल इसको अस्पताल को इग्नोर कर दिया गया। और इसकी और कोई वजह नहीं थी, एक वजह थी कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में इस अस्पताल की एक्सटेंशन का एक पूरा मंसूबा बनाया गया और सिर्फ इसी एक मकसद के लिए उन्होंने कि कहीं नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का नाम ना आगे चला जाए। इससे बड़ी कोता अंदेशी और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा एक हसद की एक आग और क्या हो सकती है कि जिससे दुखी इंसानियत, वो लोग दवाई इलाज न मिलने की बना पर वो कब्रों में धकेले जा रहे हों और यहाँ पर सियासत की जा रही हो, इससे मैं समझता हूँ कभी हरकत और कोई हो नहीं सकती जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज मैंने अभी अस्पताल का दौरा किया है, ये भी ज़ेर तकमील है और मुझे बताया गया है कि इंशाअल्लाह 30 सितंबर को इस साल ये अस्पताल अपने तकमील के मराहिल तय कर लेगा और इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा एक जो एक अवामी खिदमत का एक मंसूबा है और दुखी इंसानियत के लिए एक बहुत खुशी का पैगाम है, वो ये मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह यहाँ पर लोगों का इलाज, दवाई, उन सबको इंशाअल्लाह यहाँ पर मुहैया होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि नौजवान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ ये तकमील के मराहिल मुकम्मल कर रहा है। जो पिछली हुकूमत बनी थी एक बड़े थोड़े अरसे के लिए हमजा शहबाज शरीफ की सरबराही में, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो उनकी हुकूमत के साथ हुआ वो भी तारीख़ का हिस्सा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इसको दिन रात इसके लिए काम कर रही है। मैं मोहसिन नकवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि वो एक दिलचस्पी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक दुखी इंसानियत के लिए एक जज्बा रखते हैं उसके साथ, और उनकी टीम जिनमें चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं और हमारे अली जान, किधर अली जान, इधर आओ, ये बहुत कमाल का लड़का है, मैं इसको 10-15 साल से जानता हूँ, बहुत ही माशाल्लाह एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्वेंट है। इनकी जो ये सेक्रेटरी हेल्थ हैं कमिश्नर मुल्तान, वो कहाँ हैं?
कमिश्नर मुल्तान, उनकी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुपरवाइजरी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको निभा रहे हैं। और जो आईडैप के जो सोहेल साहब वो किधर हैं CEO? ये आईडैप इदारा ये मैंने बनाया था, ये एक्चुअली CNW का मुतबादिल था। बहरहाल ये एक अलहदा कहानी है। आईडैप एक बड़ा एक फुली कैपेसिटेटेड इदारा है जो इन कामों के लिए बनाया गया था। तो उनके ये CEO हैं, उनको भी मैं सोहेल साहब, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेक्रेटरी CNW वो कहाँ हैं? वो भी यही है जी, दोनों चार्ज इनके पास हैं। दोनों चार्ज हैं। ही इज़ वेयरिंग 2 हैट्स। तो बहरहाल ये टीम और फिर जो दर्जा बदर्जा हस्पताल के जो यहाँ पर मामूर जो अमला है, वाइस चांसलर साहब का, जो यहाँ पर जो मेडिकल टीम के हेड हैं और तमाम मुतल्लिका इदारे, मैं उन सबको मैं तासीन पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि मशीनरी बाहर से काफ़ी हद तक आ गई है। तो इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि ये अस्पताल 30 सितंबर को इंशाअल्लाह अपने तकमील के मराहिल मुकम्मल करेगा। और यहाँ पर जो बीमार लोग जो शफायाब होने के लिए वो तरस रहे हैं, अल्लाह के फजल से वो अस्पताल से पूरी तरह वो फैज़याब होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अस्पताल जल्द जल्द मुकम्मल हो। और यहाँ पर चूँकि ज़मीन काफ़ी है, मेरा यह इरादा है कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुफ्तगू करूँगा कि यहाँ पर हम एक मेडिकल सिटी बनाएं, जो कि काफ़ी ज़मीन है। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह आपसे अलहदा बात करूँगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। और ये है तस्वीर कशी, ये है वो तकाबली जायज़ा उस हुकूमत का जिसके सरबराह दिन रात चोर डाकू की गर्दान उनकी ख़त्म नहीं होती थी। उनको वक्त मिलता तो ऐसे अजीम इदारे जो कि आवाम के लिए बनने थे, जिनकी तमाम जो लीगल जो प्रोसीजरल तमाम कोर्टल फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल हो चुकी थी, अरबों रुपए नहीं खरबों रुपए उनके पास थे, तौफीक नहीं हुई, टांग पे टांग रख के बैठे रहे। और जहाँ चोर डाकू का दिन रात जो नारा लगाना था लगाते रहे और पाकिस्तान इस तरह बर्बाद होता रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन की नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो द होल ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी तमाम क़ुव्वतें बुरकार लाएगी। मगर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि 30 सितंबर की जो डेट उन्होंने दी है इंटरिम गवर्नमेंट के सरबराह ने, ये इंशाअल्लाह ज़रूर पाए तकमील पर पहुँचेगी और ये कंप्लीट होगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से हम सब दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह इस अस्पताल को मुकम्मल करा के इसका अजर और इसका सवाब उन तमाम लोगों को मिले जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है, वन वे और दी अदर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्तान में निश्तर का दौरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि उम्मीद है कि 30 सितंबर तक निश्तर 2 अस्पताल मुकम्मल हो जाएगा। अस्पताल के लिए बैरून मुल्क से जदीद मशीनरी मंगवाई गई है। उनका कहना था कि दुआगो हूँ कि निश्तर 2 अस्पताल जल्द अज जल्द फ़ाल हो जाए। पिछली हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बनने वाले इदारों के काम में रखना डाल चुकी है।